is said to be positive work when force and displacement they are in the same directions. Another condition is when theta is acute angle, that is less than 90 degree. In this case, when theta is less than 90 degree, cos theta is positive. In a diagram given below, a person is applying a force on this box or an object, and this object is displaced in the direction of this force. Again, here the force and displacement both are in the same direction. This is the example of positive work done. So let us quote certain examples in which work done is positive. So you can also list the few examples from your day-to-day life in which the work done is categorized as a positive work done. The condition is that the force and displacement they should be in the same direction, and theta, the angle between two, that should be less than the 90 degree. One example of positive work done is when an object falls freely under gravity, the work done by gravity is positive. जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है. तो उस केस में जो है द फोर्स, द ग्रेविटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, हेंस इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन. सेकंड, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, द वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव. एक घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा है और गाड़ी में मूवमेंट हुई, और मूवमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है. अगेन दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन. सेकेंड वन, when a spring is stretched by applying external force, work done by the force is positive. So these are the few examples of positive work done. Let us talk about the next type of the work done. Again, the work done is the product of force Fs cos theta, force, displacement, and angle between cos of the angle between force and displacement. Negative work done. The second type of the work done is the negative work done. The work done on an object is said to be negative work when force and displacement are in opposite directions. That is, या तो दोनों अपोजिट हो बिल्कुल, तो दोनों के बीच में जो एंगल्स होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का होगा. अनदर कंडीशंस कि एंगल 180 डिग्री नहीं है लेकिन थीटा की जो वैल्यू है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उस कंडीशंस में कॉस थीटा इज नेगेटिव. अगेन दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नेगेटिव. सो वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस नेगेटिव वर्क डन. वन, when brakes are applied to a moving bus, the work done by braking force is negative, because गाड़ी को रोकने के लिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो फोर्स लगती है वो गाड़ी के मोशन के अपोजिट लगती है. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन. सेकेंड वन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू ए सर्टेन हाइट, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव. अगर हम डायग्राम की हम बात करते हैं तो कोई पर्सन जो है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स F. ग्रेविटी जो है इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है नीचे की तरफ जो है. तो इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो हियर द वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज थीटा इज 180 डिग्री. बट point to remember, here we have two forces. One is the applied force and one is the gravitational force. The work done by applied force and work done by the gravitational force. The work done by gravitational force is an example of negative work done. And what about the work done by this applied force? The applied force and displacement of the object, they are in the same direction. So work done by applied force is positive, but work done by the gravitational force is negative. Another example, when two similar charged particles they move toward each other, the work done
by the force of repulsion between them is also negative, because we know that the similar charged particle, they repel each other. So these are the few examples of negative work done. Up to here we have talked about positive work done. हमने बात की नेगेटिव वर्क डन की. Now next talk about the third types of work done, and this type of the work done is zero work done. When we say the work done is zero. सर हेलो सर, एक क्वेश्चन आ रहा है. जी सर. लर्नर है अनुराधा जी, महाराष्ट्र से. वो पूछ रही है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलन रेन ड्रॉप. व्हाट इज द सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलन रेन ड्रॉप. हाँ, फॉलन रेन ड्रॉप. तो जब हम रेन की बात करेंगे सर, तो क्लाउड्स कंडेंसेशन जब होगा तो वेपर स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में आएगी, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे विल फॉल डाउन. तो अर्थ खींच रही है तो उन चीजों को, तो वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो नीचे आ रहे हैं. तो द ग्रेविटी इज द सोर्स ऑफ हियर, द ग्रेविटी इज द सोर्स. ओके सर, आई थिंक इट इज क्लियर. ओके सर, गो अहेड सर. Now this we will talk about the zero work done. When we say the work done is zero, the work done by a force is zero if body get displaced perpendicular to the direction of applied force. अब definition पे जाके let us talk about the figure B. A person is carrying a suitcase in his hand, holding a suitcase in his hand and moving forward. Here उस suitcase को hold करने के लिए जो फोर्स है वो अप्लाई किया है अपर डायरेक्शंस में, और द पर्सन इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो इन दिस केस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 90 डिग्री. तो वर्क डन बाय डेफिनेशन, बिकॉज दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0. तो टेक्निकली द पर्सन इज नॉट डूइंग वर्क, साइंटिफिकली द पर्सन इज नॉट डूइंग एनी वर्क. So here the theta will decide the work is done or not. Again this is a case of the theta कि जब हम थीटा की वैल्यूज लेंगे और थीटा जब 90 डिग्री के लिए होगा तो वर्क डन 0 होगा. लेकिन अनदर कंडीशन इज दैट द वर्क डन इज 0 इफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और बोथ आर 0. अगर फोर्स भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क डन 0 है. अगर फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स नहीं है, तो उन सारी सिचुएशंस में वर्क डन इज 0. तो एग्जांपल्स, अ पर्सन कैरिंग अ सूटकेस इन हिज हैंड एंड नॉट मूविंग. कोई पर्सन सामान उठा के एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, फोर्स तो अप्लाई किया है उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन इज 0. सेकेंड केस हमने डिस्कस किया है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो उस केस में भी वर्क डन जो है वो 0 होगा. तो अभी और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ अगेन वी हैव सर्टेन सिचुएशंस वेयर नो वर्क इज डन. वन एग्जांपल, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and get tired. अब इसने अपने सिर पे बोझा तो उठा लिया है, लेकिन मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह खड़ा है, थक भी गया है. साइंटिफिकली टेक्निकली वर्क इज नॉट डन, बिकॉज फोर्स तो अप्लाई किया है लेकिन मूवमेंट नहीं है. लेकिन अगर इस तरह जो है ये पर्सन जो है अगर मूवमेंट भी करता है, सिर पे कोई सामान उठा के मूवमेंट भी करता है, अगेन वर्क डन इज 0. फोर्स भी है, मूवमेंट भी है, लेकिन वर्क डन फिर भी 0 होगा. क्यों होगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. सेकंड डायग्राम, व्हेन फार्मर इज पुलिंग ए काउ और ये मूव नहीं कर रही है, तो नो वर्क इज डन बिकॉज द पर्सन इज अप्लाइंग ए फोर्स, बस देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगेन द वर्क डन इज 0. Another examples of 0 work done, you sit on a chair for many hours, no work is done as there is no involvement of motions. Now, another important example of situation where work done is 0,
वन, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हम अभी तक जो है हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं जीरो वर्क डन के कुछ एग्जांपल्स। So we are talking about certain situations where no work is done. तो इनमें हमने 3 एग्जांपल्स की बात की है। द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस जीरो वर्क डन इज when a body is moving in a circular path. An example, a satellite is revolving around the earth. Work done by the gravitational force is zero because gravitational force is providing the necessary centripetal force for the satellites. This force is directed toward the center of the path. In this case, the force and displacement, they are mutually perpendicular to each other, and theta is equal to 90 degree. Hence, again, work done by the force is zero. Now, अभी हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो है वी विल टॉक अबाउट द यूनिट एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। सिंस द वर्क is equal to force into distance, so dimensional formula of the work is equal to dimensions of force multiplied by the dimension of distance, that is length. So force has dimensional formula mLT minus 2. एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है एक लर्नर से। जी सर। श्वेता है दिल्ली से, वो बोल रही हैं जी, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन in a circular orbit is जी, acted upon by a force, जी, and hence work must be done on the earth by the force. Is it correct statement? no sir, the earth is under the action of the centripetal force sir. If external force is acting, अगर बाहर से कोई फोर्स लगती है अर्थ के ऊपर और अर्थ जो है उस डायरेक्शन में जा रही है, उस फोर्स की डायरेक्शन में, then work is done. Otherwise no work is done by the gravitational force because earth is revolving around the sun. The force and the displacement, the motion, the velocity, तो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो cos 90 की जब वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में तो cos 90 जीरो, तो टोटल जो प्रोडक्ट है एफ एस cos थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। सर एक और लर्नर है नेहा दिल्ली से, वो पूछ रही हैं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इन कीपिंग द मून इन इट्स ऑर्बिट। जीरो वर्क डन सर, zero work done. Again work done is zero. Okay, thank you sir. Again work, because again the force and displacement they are mutually perpendicular to each other. So all those situations where F and S, the displacement, they are mutually perpendicular to each other. Theta is zero, cos theta again now theta is 90 degree, cos 90 is zero, work done zero. Again वहाँ force भी है, displacement भी है, दोनों हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो जब भी ये सिचुएशन होगी वर्क डन इज जीरो। ओके, थैंक यू। सो द वर्क डन इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस वर्क डन इज एफ एम एल टू टी रेज्ड पावर माइनस 2। नाउ अब वर्क डन जो हमने पढ़ा, अब इसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए लेट अस टॉक अबाउट द एसआई सिस्टम। In SI system, the unit of work is joule, and 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. In CGS system, force is measured in dyne, unit of distance is centimeter, so dyne into centimeter is equal to erg. So, if we talk about the definition of unit, one is the definition of work and one is the definition of unit of work. So here 1 joule of work done. When we say that the work done is 1 joule, work done by a force is 1 joule. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own directions. Another one,
You can also frame the definitions of work done in CGS system कि when we say the work done by a force is 1 arc. Again, the work done is 1 arc when one dyne force displaces the object in its own direction by 1 meter. So these are the certain descriptions about the work done. वर्क डन डेफिनेशन पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़े, कुछ एग्जांपल्स पढ़ा, डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स की हमने बात की. अगेन वर्क डन इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन. नाउ वन फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेड विद द वर्क इज कि उसके लिए क्या है कि आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वन थिंग, यू शुड हैव द एनर्जी. तो कोई भी फिजिकल टास्क है या मेंटल टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो है हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एनर्जी हमें कहाँ से आती है? हम खाना खा रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर कर रहे हैं. इससे जो हमारी जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारी बॉडी में मसल्स में जो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर एनर्जी. हम अपनी बात कर रहे हैं इसमें. तो जब कोई भी हम मेंटल एक्टिविटी होती है या कोई फिजिकल टास्क हम कंप्लीट करते हैं तो वही एनर्जी जो है हम यूज करते हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. तो लेट अस मूव टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड द फिजिकल क्वांटिटी इज एनर्जी. बिफोर डूइंग दैट एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, उसी के ऊपर आप बात करते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा वो था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. व्हाट डज इट मीन? कि एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन, दैट पोजीशन इज ए टू बी. तो ए टू बी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, और जब तक बी पोजीशन तक बॉडी नहीं पहुंच रही है, फोर्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट. तो ये फॉर्मूले जो है हमने अप्लाई कर दिया. लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है कि कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हैं, किसी को पुश कर रहे हैं आप या पुल कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को पहले आपने धीरे से खींचा उसको और फिर थोड़ा सा फोर्स को बढ़ा दिया, तो उस केस में जो है आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो दिस इज द सिचुएशन, द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. तो इसके लिए हम जो है ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं. वी हैव ए ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड वन इज द force. The graph is shown in the figures. The magnitude of force changes with the position of the object. तो उस केस में जो है हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? Suppose we are considering a small displacement, the two position of the body. बॉडी की पोजीशन ए टू बी चेंज हो रही है, इन बिटवीन कोई सी एक दो पोजीशंस हम ले लेते हैं बॉडीज की x1 और x2 से, कि ऑलमोस्ट x1 to x2 that force remain force is remaining constant. Otherwise, from initial position to final position, here according to graph the force is changing. So if displacement delta x is small, we can take the force fx approximately constant and the small work done in this case. Why here written fx? Because force is depending upon the x. As x changes, the value of force also changes. So here we calculate the small work done delta w, that is fx delta x, is small work done in displacing the body for a small displacement delta x. Now if this displacement is allotted to approach zero, अगर हम इसको और भी इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, और जो टोटल टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एरिया, टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ. तो इन दिस केस द टोटल वर्क डन W is equal to summations of all the work done. वो सारे वर्क डन जो आपने कैलकुलेट किए, जब थोड़ी थोड़ी पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज की और आपने W1, W2, W3, W4 एंड Wn तक जो है ये वर्क डन को कैलकुलेट किया और उनको हम एड अप कर देंगे. तो एड अप समीशंस द वर्क डन f delta x limit from xi initial position to final position and delta x is approaching to 0.
The work done is integration of fx dx within the limit initial position to final position. तो ये फार्मूला जो है हम यूज करेंगे जब वेरिएबल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है. तो the work done by a variable force acting on an object that undergoes a displacement is equal to next the total area. जो ग्राफ का जिन दो पोजीशन के बीच में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां से दो लाइनें ड्रॉ कर दीजिए. जो उसका जो शेप बनेगी उसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स जो है. तो एनर्जी को मूव करने से पहले एक टॉपिक स्किप कर गया था, तो हमने इसको पढ़ा कि अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है तो यू विल यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है. सो नेक्स्ट let us talk about the energy. The physical quantity which is very closely related to the work is the energy. We need food to complete our physical and mental exercises. The food that we eat contains chemical energy. We use this energy to perform daily activity. उसके लिए हमें mechanical energy की जरूरत पड़ती है. Just like the fossil fuels that fuel our car also contain chemical energy within their chemical bonds. When fossil fuels are combusted within the engines of the car, the chemical energy is released to move the car. तो वो एनर्जी जो है, जो केमिकल एनर्जी गाड़ियों में जो फ्यूल हमने फिल किया है, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है या कोई भी आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी जो है रिलीज हो रही है वो उस व्हीकल को रन करने में यूज होती है. तो एनर्जी इज नथिंग बट वी कैन से इन ए सिंपल वर्ड, इफ you have energy then you can do the work. So your capacity or your ability to do work is known as energy. The definition, simple definition of the energy. This energy exists in many different forms, so many form of energy. There are so many sources of energy available to us. For example, light energy, heat energy, mechanical energy, gravitational energy, electrical energy, sound energy, chemical energy, nuclear और atomic energy. तो ये सारी जो है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है. आउट ऑफ दिस ऑल फॉर्म हम इस चैप्टर्स में सिर्फ हम एक फॉर्म की बात करेंगे और वो है मैकेनिकल एनर्जी. Mechanical energy of an object is a sum of its kinetic energy plus potential energy. तो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो है दिस टाइप ऑफ एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी. तो लेट अस टॉक वन बाय वन. द केमिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी की मेजरमेंट कैसे करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितने टाइप्स की होगी, इसके यूनिट क्या होंगे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनमें हम ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट. बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, तो इट हैज बोथ द वर्क एंड एनर्जी द सेम यूनिट. दे हैव सेम यूनिट, दिस इज द जूल्स, एंड हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज ml² p raised to power -2. Again, as work is a scalar physical quantity, this energy is also a scalar physical quantity. So let us talk about mechanical energy, which is the sum of kinetic plus potential energy. So let us talk about. Excuse me, sir. जी sir. Sir, one more question is coming. The learner Yes, is Abhilasha from Okay. Bihar. Okay. She is asking how many ergs make 1 joule? हाँ, 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. You can convert a simple formula. You can convert this erg into joules. Erg is a smaller unit of energy. This joule Sir, is a bigger unit of energy, and 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. 10 raised to the power 7 erg, no sir? 7 erg, yes sir. Okay sir. Now let us talk about the kinetic energy. First, one thing, a moving object can do work. The amount of work done by a moving object that a moving object can do before coming to rest is equal to its kinetic energy. हम इसको और भी सिंपल तरीके से
डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। पहले हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिर एनर्जी की बात करते हैं कि वर्क डन कैसे हो सकता है। फर्स्ट, अ मूविंग हैमर ड्राइव अ नेल इनटू ए वुड। अगर हमने कहीं लकड़ी में कील लगानी हो तो जोर से हथौड़ी से मारेंगे उसको जो है, दैट नेल विल ड्रिवन इनटू द दिस वुड। बीइंग इन मोशंस व्हेन दिस हैमर इज रेज्ड टू हाइट, और जब जोर से नीचे आएगा कील पे स्ट्राइक करेगा, इट हैज काइनेटिक एनर्जी और इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। वन एग्जांपल इज अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक अ विंडो पैन्स। अगर हम जोर से खिड़की के शीशे पे पत्थर मारते हैं तो वो टूट जाता है, बिकॉज इट हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशंस एंड कैन डू वर्क। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन द विंड मिल्स। अगेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर, पानी जो बहता है उसकी एनर्जी जो मोशंस में है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और वो जो है किसी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वहाँ पे जो है वो टर्बाइंस को रन कर सकता है, देन इट हैज एबिलिटी टू द वर्क जो है। सो लेट अस कंक्लूड बाय दीज ऑल एग्जांपल्स, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द kinetic energy. For example, an arrow released from the bow flying through the air, it has the kinetic energy. Object rolling down a hill have the kinetic energy. जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम मोशंस में है, we have the kinetic energy, and a moving car that also possesses the kinetic energy. So let us talk more about the kinetic energy. कि अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स में काइनेटिक एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो एनर्जी जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो एनर्जी, बिकॉज दिस एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कई बार वो काइनेटिक की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं, कई किसी और फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं, हम नेक्स्ट में स्लाइड्स में बात करेंगे। सबसे पहले जो है हमने ये पढ़ना है कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है, तो क्या दोनों में एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट भी हो सकती है, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस सपोज दैट अ कांस्टेंट फोर्स F is acting on a body which have mass m, and initially we are considering that body is at the state of rest, and that force when the body is acted by the force, उससे क्या हुआ, उसकी स्पीड में चेंज आ गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v में, and the body covers distance s in the direction of force। की दो पोजीशन है बॉडी की। at point A body was at the state of rest, then applied a force, हमने फोर्स अप्लाई किया है, बॉडी दूसरी पोजीशन पे चलेगी B पे, जब बॉडी B पे है तो इसकी वेलोसिटी v है, और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम A टू B इज s। देन वर्क डन, तो वर्क डन कितना हुआ, अगेन वर्क डन बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द वर्क डन इज इक्वल टू Fs। इस वर्क डन इज इक्वल टू, बिकॉज फोर्स, आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है, मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी, द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो द वर्क डन इज इक्वल टू मास m, एक्सेलरेशन a एंड s डिस्प्लेसमेंट। लेट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, हमारे पास सिर्फ दिया है कि इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई किया है, इसका मास m है, और जब b पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी v है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, that v square minus u square is equal to 2as, or this v square minus 0 square, because initially body is at the state of rest, u is equal to 0, so this v square minus 0 square is equal to 2s, and hence s is equal to, in terms of v and a, that s is equal to v square upon 2a। अगर हम इस s की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो w is equal to m v square divided by 2,
एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू, क्योंकि आपने वर्क डन किया है वही किस में आ जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हेंस दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ mv². तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है. वन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द मोशंस के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. अगर V इज इक्वल टू 0, इस फार्मूले में अगर V की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. दैट इफ बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. तो अब काइनेटिक एनर्जी और वर्क के रिस्पेक्ट में जो है हमने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप बन जाता है. तो लेट अस टॉक अबाउट अनदर थ्योरम. एंड सर उससे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, एक हमारे लर्नर है मयंक फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ही इज आस्किंग, डज अ सिंगल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल नेसेसरली चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी? Sir, when we talk about the kinetic energy, there should be next external force. यानी कि फोर्स कोई बॉडी की पोजीशन में जब चेंज आएगा तो वो तभी बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है. सिंगल फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ही कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है, अगर फोर्स एक्ट करती है और बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा. क्योंकि अगर सपोज कि हमारे पास बॉडी रेस्ट में है, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया लेकिन वो बॉडी में मूवमेंट नहीं है, तो उस केस में द बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 थी और जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब ये 0 रही. लेकिन अगर वही सिंगल फोर्स बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे तो वर्क डन हुआ और वही वर्क डन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है. So I think okay sir, one more question is there. Okay sir. From Kerala, and the learner is Sahaja. He is asking, what is the value of 1 kilowatt 1 kWh in terms of joule? This is the case, 1 kilowatt 1 kWh. Yeah, 1 kWh in terms of joule. This is kilowatt hour. Yeah, kilowatt hours. कि अब जब एनर्जी और फोर्स को आप रिलेट कर देंगे तो ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी के, यूनिट्स बोलते हैं हम इसको, जिसमें जैसे घरों में हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो उसका बिल आता है तो वो यूनिट्स में कैलकुलेट होकर आता है. तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. अब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अभी मैं करवा भी सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो ठीक है सर, कोई बात. हाँ जी, ओके सर. ओके सर, प्रोसीड सर. हाँ जी, तो लेट अस दिस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड द काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स. अगेन हम कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे, वेरिएबल के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया किसी ऑब्जेक्ट की, तो वहां पे इनिशियली हमने सिचुएशन ली थी कि बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. Now suppose the body is moving, already moving. Suppose initially that body was moving with velocity u, and after that you are applying a force. उस वजह से बॉडी की वेलोसिटी में जो है, स्पीड में जो है चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उस केस में जो है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा. दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो लेट सपोज दैट अ कांस्टेंट फोर्स F acting on a body of mass m which is producing acceleration A in it. After covering a distance, suppose velocity changes from u to v. Then the work done by a force, again force into displacement F into S. The work done is MAS. This is question number 1. Now you can use the equation of motion, that v square minus u square is equal to 2as. Now S is equal to v square minus u square divided by 2a. Again here u is not equal to 0. So putting the value, अगर हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करें
So we have another equation that W is equal to M into A inside the bracket B square minus U square divided by 2A. So therefore this work done is equal to half mb square minus हाफ mu square. अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है अपने टर्म्स को, तो here the first term is half mb squares and second term is the half mu squares. Both are energy, both are the kinetic energy, but initial velocity of the body is u and final velocity of the body is b. So half mb square is the final kinetic energy of the object and half mu square is equal to initial kinetic energy of the object. So hence we can define the work done is equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इस फार्मूले की अगर हम बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस केस में अगर आपके पास सपोज एन एग्जांपल इज गिवन टू यू दैट अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू, कि इतने फोर्स जो है, इतने न्यूटन की फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करी, उसके बाद क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी, अब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई. अब कैलकुलेट करो वर्क डन कितना हुआ. तो अभी तक हमने वर्क डन जो है उसके लिए फार्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एस या डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. तो इस केस में अगर आपके पास ना फोर्स हो ना डिस्प्लेसमेंट दो, सिर्फ यही दिया है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इतनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो उससे भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको नोट करें. इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस अगेन द पॉजिटिव वर्क डन. तो वो सिचुएशन जिसमें इस तरह का किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है और चेंज जो है वो पॉजिटिव है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन. सेकेंड, इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, again kinetic energy decreases, the negative work done. If there is no change in kinetic energy, a force act कर रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उसकी kinetic energy में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फाइनल kinetic energy is equal to initial kinetic energy, no change in kinetic energy, hence work done is 0. So let us conclude this theorem. Kinetic energy and work energy theorem. When positive work is done on an object, its speed increases, and when negative work is done, its speed decreases. तो कोई ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, और वही ऑब्जेक्ट को अगर आपने थ्रो किया है अपर डायरेक्शंस में किसी वेलोसिटी के साथ, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जीरो हो जाती है, और जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो दिस इज एन केस ऑफ द नेगेटिव वर्क डन जो है. तो वर्क डन लेस देन जीरो आएगा, इसमें वर्क डन ग्रेटर देन जीरो आएगा. वन इज द पॉजिटिव वर्क डन एंड वन इज द जीरो वर्क डन. एक्सक्यूज मी सर. जी सर. एक और क्वेश्चन आ रहा है, लर्नर है दीपांश भार्गव एमपी से. जी he is asking, a body falls towards earth in air. Okay sir. Will its total mechanical energy conserved during the fall? Justify it. Yes sir. Conservation of energy is the fundamental principle of energy. तो अभी तक जितना भी हमने साइंस में जितनी भी हमने रिसर्चेज हुई हैं, अभी तक कोई भी ऐसा फिनोमिना नहीं है जिसमें एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है. नो डाउट कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेगी, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट ऑब्जेक्ट, दैट पार्टिकल, दैट बॉडी, दैट ऑलवेज कंजर्व्ड. कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो, कोई भी अभी तक हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ फेल हो जाता है. ये फंडामेंटल लॉ है साइंस का. तो आई थिंक द पर्सन इज सेटिस्फाइड विद द आंसर सर. One more question is there from Anushka from Haryana. Okay sir. She is asking, I want to ask that what is unit of energy? If when we say that energy of a body is 1 joule, it means this body has the capacity to do 1 joule of work? Yes sir. So if the energy of a body is 4 joule, then the capacity is 4 joule?
Yes, sir. Yes, sir. He can do one joule of work done, sir. Okay. Yes. Thank you, sir. Sir, shall we go for break, Yes, sir, sir. for 5 minutes? Okay. So learners, here we will go for a break for 5 minutes, and then we will resume it. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम Over to you, sir, for live. Okay, thank you, sir. Thank you. May I start, sir? Yes. So up to here, dear learners, dear friends, we have talked about the kinetic energy. Let us talk about the this potential energy. This is another form of energy. This energy possessed by a body due to its position in the gravitational field of Earth or due to its configurations is known as the potential energy. तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो या तो किसी बॉडी की पोजीशन है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में या उसकी कन्फिगरेशन, उसका शेप एंड साइज ही उसी तरह का है। तो इस तरह की जो एनर्जी है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है
लेकिन अर्थ के कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड में है, कन्फिग्रेशन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी है, तो उस एनर्जी की को जो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, जब पोजीशन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट रेज टू ए हाइट हैज पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट को, पत्थर का टुकड़ा जो है जमीन पे पड़ा हुआ है और कुछ हाइट पे ले जाते हैं हम इसको, जो है ऊपर उठा के रखा हुआ है इसको, तो वो अगेन जब ग्राउंड में था तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, हमने उसको ऊपर लेके गए और फिर हाथ में पकड़ के रखा हुआ है इसको, उसकी हाइट इंक्रीज कर गई, इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी, अगेन एट दैट हाइट द बॉडी इज अगेन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो सेकंड वन इज द वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक, घरों में पानी की सप्लाई है, ऊपर पानी की टंकी है, उसमें पानी स्टोर करके रखा हुआ है, उसमें जो एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। वन मोर एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश जब करते हैं तो रिवर्स पे जो है कहीं सुटेबल जगह पे एक बांध बना दिया जाता है जिससे पानी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पानी रुक जाता है और खड़ा हो जाता है वहां पे, तो स्टिल वाटर है, उसमें जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रन द टर्बाइन्स। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगेन when object is raised to a certain heights, we have to apply the force. There are two forces are there. One, a force is acting on the object, the applied force. One is the force of gravity. So here we are doing the work against the gravity. So we have a body of mass m, initially lying on the surface of Earth. Let at that point the value of acceleration due to gravity is g, and activity is that you have to lift this body to a height h. Now the force acting on the body, उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है उसके ऊपर फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स है दैट W इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगेंस्ट द ग्रेविटी हम उस बॉडी को हमने लिफ्ट किया, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू f s cos theta, here s is equal to h, theta is equal to 180 degree because gravity is pulling the force in downward direction. So the work done is equal to minus mgh. By negative sign signifies that we are doing the work against the gravitational force. So work done by the gravity, because gravity is acting in downward direction, displacement of the body is in the upward direction, so work done is negative. We can also calculate the work done by the applied force. The work done by the applied force W is equal to Fh cos theta, because the movement of the body is in the direction of applied force. So the work done, again F is equal to the weight of the body mg, the W is equal to mgh. In this case the work done by the applied force is positive, and this work done is stored as energy, and that energy is equal to, that energy of the body is due to height, and due to position, its position in the gravitational field of Earth. So the potential energy of the body is equal to mgh. So this is the formula to calculate the potential energy. Another type of the potential energy which is due to configurations, a few examples are there. Example of stretched bow, example of stretched rubber sling. Third example is when a spring is either compressed or stretched by applying a force. And third one is inflated balloons, कि बैलून में आपने हवा भरी है, अब वो फूल गया है, उसमें एनर्जी आ गई है, वो एनर्जी कौन सी है, वो उसकी कन्फिग्रेशन की वजह से है, वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कि आपने वो को किसी भी चीज को स्ट्रेच करके रखा, स्ट्रेच रबर है, रबर बैंड है, स्ट्रेच स्प्रिंग है, तो जब इसको स्ट्रेच्ड पोजीशन में है या स्प्रिंग कंप्रेस्ड पोजीशन में है, तो उन दोनों ही पोजीशन में इसमें एक एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज ड्यू टू कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे जो खिलौने के लिए गाड़ी है उसमें हम चाबी भर देते हैं, जब हम चाबी भरेंगे तो वो उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, वो उस केस में उसमें जो एनर्जी है वो उसकी कन्फिग्रेशन की वजह से है, कि दैट इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर दैट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ड्यू टू कन्फिग्रेशन, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक potential energy.
सो उस केस में जो है एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हमने कैलकुलेट किया, इट इज mgh। लेकिन किसी स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच करके रखा हुआ है, तो उस केस में कितनी उसमें एनर्जी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वी हैव ऑन द स्क्रीन द 3 डायग्राम्स। वन, वी हैव स्प्रिंग, एक एंड उसको फिक्स स्पॉट पे हमने बांध के रख दिया है, एक एंड में एक मास अटैच कर दिया है, एंड लेट सपोज कि दिस होल सिस्टम इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। ये फ्रिक्शन बहुत ही कम है, स्मूथ है टेबल बिल्कुल। फर्स्ट पोजीशन इज द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन x is equal to 0, no force, fx is also, no force is acting on the body. So let this object, this spring is stretched by applying a external force, and the mass, the body is moving in the direction of force, move to another positions. Now third position, when this spring is compressed by applying a external force, a spring is compressed. तो जब स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है या इसको स्ट्रेच करके रखा, इन दोनों ही कन्फिग्रेशन में इसमें एनर्जी है, वो एनर्जी है इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके अकॉर्डिंग कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो एक फोर्स और डेवलप होगी स्प्रिंग के अंदर, या इसको हम कंप्रेस करेंगे तो एक फोर्स और डेवलप होगी इसके अंदर, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं या इसको स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। ये स्प्रिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, उसके हमेशा ही अपोजिट होती है। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट विल बी हैपन? स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो वी हैव द हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी दैट spring force is given by formula that is equal to Fs is equal to minus kx, where k is the constant of proportionality and this is known as the spring constant. When x is 0, body is at the mean position, no force is acting on the body, thus this spring force is also equal to 0. But when we apply the external force, body get displaced from its equilibrium positions, its displacement increases, this spring force also increases, and when body जो है मैक्सिमम जहां तक उसको डिस्प्लेस करना था वहां तक पहुंच गई, तो x, the displacement of the body attain the maximum value, force also become the maximum. तो in this case तो एवरेज फोर्स कितनी लगी? पहले फोर्स 0 थी, फिर मैक्सिमम फोर्स हो गई। we can calculate the average force by taking the mean of two values, 0 plus Fs divided by 2. So hence the average force acting on the body is Fs by 2. Now calculate the work done. The work done is equal to force into displacement, or this W is equal to Fs by 2 into x. So since the magnitude of Fs is equal to kx, और इस फार्मूले पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन compressed or stretched spring is equal to half kx square. K is the constant of proportionality that depends upon the nature of the material of the spring, and x is the displacement, कि कितना उसमें जो है उसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है आपने, या कितना किस अमाउंट से इसको आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो इस तरह जो है जो कन्फिग्रेशन के कारण किसी बॉडी में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। जो है एक्टिविटी है, आप स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है, अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे ले गया, कंसिडर कर लिया हमने स्प्रिंग की, एक साथ इसके साथ मास अटैच कर दिया, इसमें एक्सटेंशन आ गई, और फोर्स अप्लाई करेंगे और एक्सटेंशन होगी और इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि आपने जो मास अटैच किया है, वेट है mg, दैट mg इक्वल टू kx एंड k इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई x। तो इस एक्टिविटी से भी आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। आप एक सिंपल सी एक्टिविटी है, घर में एक स्प्रिंग लेंगे, उसके साथ एक मास अटैच कर दिए, एक स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको उसको, और मास कितना अटैच किया है, 50 ग्राम 100 ग्राम, जितना भी आपने मास अटैच किया उसकी वैल्यू आपके पास होगी। स्केल से आप मेजर कर सकते हैं कि उसमें एक्सटेंशन कितनी हुई, और उससे जो है आप उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर। एक्चुअली आज हमारे साथ काफी लर्नर्स देश के हर कोने से जुड़े हुए हैं ओके और सर, ओके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो कुछ हम ओके क्वेश्चंस ले लेते हैं सर, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बनी हुई है, जी हमारे सर जी। क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने चाहिए। ओके सर, ओके तो सर एक कैरी ऑन सर। लर्नर है अनुराग, वेस्ट बंगाल से, ओके सर। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी? स्टार्टिंग यूनिट सर। स्टैंडर्ड यूनिट Again, because we are calculating the energy with respect to work done. Again, potential energy is again calculated as a work done on that object. कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पे था, आप उसको उठा रहे हैं तो आपने उसके ऊपर वर्क किया और वही वर्क डन जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। वही वर्क डन इज नोन एज दैट वर्क डन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका स्टैंडर्ड यूनिट द क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दिस all have the same unit joule as the unit of work. यही सर, क्वेश्चन था सर। हाँ, और एक क्वेश्चन आ रहा है, आस्था है सर, हरियाणा सर। से, वो पूछ रही हैं कि वेयर डज अ कार ऑन ए हिल हैव द मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी? ऑन अ हिल, हाँ, अगेन रिपीट करेंगे क्वेश्चन। वेयर डज अ कार ऑन ए हिल हैव द मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी? टॉप ऑफ द हिल या बॉटम ऑफ द हिल या हाफ वे? एट द टॉप ऑफ हिल व्हेन हाइट इज मैक्सिमम सर, एट द मैक्सिमम। ओके, सो जितनी ऑन द हाइट टॉप, बॉडी की ज्यादा होगी उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब कि लेकिन टॉप उस ऑफ द केस हिल में पे, ये भी दूसरा ये भी है सर कि आपका जो फार्मूला है mgh, पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। फॉर स्मॉल हाइट ऑलमोस्ट द वैल्यू ऑफ जी रिमेन कांस्टेंट। इफ अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाएंगे और अर्थ के रेडियस से ज़्यादा की हाइट भी अगर हो बॉडी को हम रेज कर देंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। जी जी जी, लेकिन फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी, बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट है, तो जहां पे हाइट मैक्सिमम होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी मैक्सिमम होगी सर। सर एक लर्नर और हैं, आरव, नोएडा ओके से, ओके वो सर। पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? अगेन सर दिस इज mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। ओके, फार्मूला इज सेम सर, mgh। अभी आपने ड्राइव किया वही फार्मूला एप्लीकेबल है, उसी को हम दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने इसको थोड़ा सा इलैबोरेट नहीं किया, थोड़ा सा हम एक और यूनिट की तरफ चले जाते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी की दो ही फॉर्म की हम बात करते हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से है और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो शेप और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल अगर पोटेंशियल एनर्जी भी बोले तो इट इज इक्वल टू mgh। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में वी कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट सर। तो आई थिंक दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन सर। सर एक और लर्नर है सर, यस सर। इनका भी नाम अनुराग है और ये जी एमपी सर। से हैं। ये पूछ रहे हैं इफ ए रेड बॉल इज हायर देन ए ब्लू बॉल एंड बोथ बॉल्स हैव द सेम मास, व्हिच Okay. बॉल हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास इक्वल है और जिनको इक्वल हाइट पे रखा हुआ है, दे हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी। तो कलर क्या है, उस बॉडी की शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ये इट डजंट मैटर्स। द पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स आर देयर, वन इज मास, one is g, acceleration due to gravity, and one is the height. If all the factors are same, then body different, बड़ी है, कोई छोटी है, किसका साइज ज़्यादा है, कोई छोटा है, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास दोनों का बराबर होना चाहिए, सेम हाइट पे होनी चाहिए, और वहाँ पे हाइट जब सेम होगी तो जी की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट होगी, तो बोथ हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी। सर एक और लर्नर है सर, ओके शीतल है, नॉर्थ ईस्ट से, ओके ये सर। पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट? सर स्प्रिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अभी अपने प्रीवियस स्लाइड पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है वो, या रेस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग में डेवलप हो रही है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट और वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। तो वो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जितनी एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, और वो रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट।
and by formula this k is equal to ratio of force upon x. x is the displacement, distance कितना हुआ. तो इस तरह हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर फोर्स कितनी लगाई है आपने, तो जैसे mg है, स्लाइड्स में लिखा है कि अगर किसी स्प्रिंग के साथ जो है एक मास अटैच किया है, तो उस मास को आप g से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो कि एक्सटेंशन कितनी हुई स्प्रिंग में, तो आप उस स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. सर एक और क्वेश्चन आया है सर, प्रेमा है हिमाचल प्रदेश से. जी सर. और पूछ रही है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ कॉलिजन इन विच ऑल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट? सर कोलिजन्स, इन इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा, इलास्टिक कोलिजन में होगा. इन इलास्टिक कोलिजन, व्हेन अच्छा. कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन इलास्टिक, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके. और अगेन काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी क्यों कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन्स में जो है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी. अगर इस तरह का कोलिजन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो दो ऑब्जेक्ट एक से साथ टकरा रहे हैं, तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट मूव कर रहा है. जब नेक्स्ट भी रुक जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई डिसिपेटिव फोर्सेस होंगी वहां पे, तो एनर्जी जो है जब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो टोटल एनर्जी उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किसी और फॉर्म में चेंज हो रही है. तो इन इलास्टिक कोलिजन्स में जो है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक. दूसरा पार्ट है सर, उनका दूसरा क्वेश्चन है सेम लर्नर का ही, कैन मैकेनिकल एनर्जी बी नेगेटिव? What form of energy, sir? Mechanical energy. It can be negative or not? When we talk about the negative, there is a significance of that negative sign. That negative sign may signify as a increase or decrease. Okay. Okay, sir. So the total energy, for example, अगर हम इस टॉपिक से हटके जो है बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द दिस न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ये सिग्निफाइज कर रही है दैट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव, बट मैकेनिकल एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, सर. ओके, बिकॉज ये सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. अगेन ओके सर, सो अभी तक दैट्स ऑल सर, यू कैन प्रोसीड सर. ओके सर. Now proceed forward, sir. Yes, yes. Okay. So let us talk about the fundamental principle of this nature, the science in physics, that is law of conservation of energy. अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, एक स्ट्रेच्ड बो है, उसमें उसको अपने स्ट्रेच्ड कॉन्फ़िगरेशन में रखा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है. अगर हम उसको रिलीज कर दे, बट विल बी हैपन, द एरो विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो. सिमिलरली जो है, अगर आपने एक गुब्बारे को फुला के रखा हुआ है और ओपनिंग को अगर आप वहां से छोड़ दें इसको जो है, तो जब ये स्ट्रेच था, पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है जा रही है इसमें काइनेटिक एनर्जी में. सिमिलरली इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, पानी जो है डैम में स्टोर्ड है, और जब ये इसको रिलीज करते हैं डैम से जो है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, जिसका हम यूज करते हैं उस टर्बाइन्स को रन करने के लिए. बट हेयर द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो सिस्टम हमने कंसिडर किया है, चाहे बो एंड कोई भी हमने एग्जांपल लेते हैं, व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी विद द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट्स, एंड दिस इज the law of conservation of energy. Let us again talk about the case of the hydroelectric projects. When water stored in a dam has the potential energy, when it is released from a height, it has kinetic energy, and this energy is used to run the turbines, and turbine is attached with the generators, and generators converting that energy into the electrical energy. तो again कि जनरेटर जो है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ उसने एनर्जी को कन्वर्ट किया है, जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी का, उसी को उसने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया है. अगर इफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फीड टू ए बल्ब, देन व्हाट विल हैपन्स, बल्ब लाइट अप देगा, लाइट देगा हमें. तो वही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में. अगेन
कि एनर्जी की फॉर्म तो चेंज रही है लेकिन टोटल एनर्जी थी वो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. सो whenever the energy get transformed, the total energy remain unchanged. The law of conservation of energy in science is the fundamental law of physics, and it states that energy cannot be created nor be destroyed. कि एनर्जी कभी भी पैदा नहीं कर सकते, ना ही हम कभी खत्म होती है, लेकिन but we can change from one form to another form. For example, अगर हम मूविंग कार की बात करते हैं तो एन ऑटोमोबाइल इंजन चेंजेस केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. सन से हमें एनर्जी मिल रही है तो वो एनर्जी का जो सोर्स है वो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस है जो न्यूक्लियर एनर्जी को चेंज कर रही है रेडिएशंस में, लाइट में एंड हीट एनर्जी में. अ ट्री चेंजेस रेडिएंट, वही एनर्जी जो है एक प्लांट को मिल रही है तो वो चेंज करा उसको केमिकल एनर्जी में. वही एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने फीड कर दी है हीटर्स को तो वही चेंज उस एनर्जी को चेंज कर देगा हीट एनर्जी में. तो सिमिलरली जो है जो काइनेटिक एनर्जी है हैमर्स की वो नेल पे जब ट्रांसफर होगी तो नेल विल डिलीवर इनटू द वुड. तो ये सारे सिचुएशंस हैं सारे जहाँ पे हमारे पास एनर्जी का कि एनर्जी एक फॉर्म से चेंज दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, तो कोई भी फॉर्म है लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट ऑलवेज रिमेन constant because it is a fundamental law of nature and the total energy in this universe is also constant. This energy is available, no doubt this energy is available to us in a different form, but if we add up the total energy of this universe is constant. सर एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर. ओके बहुत सर, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. एक और क्वेश्चन है सर मिस्टर सुजल कुमार का बिहार से. जी सर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी? Okay, during free fall the value of this value of g is taken as 0 because body is in the state of weightlessness, that when a body falls freely its weight become equal to 0. Now since weight is the product of mass into acceleration due to gravity, the mass of the body cannot be 0, so if w the weight of the body is 0, it is only possible when the value of g is also equal to 0. So during free fall the value of g is equal to 0. Okay sir. Fine sir. So we have to wind up also sir. Okay. Okay sir. So how many minutes are left sir? Sir, we can wind up as soon as possible because time is over now. Okay sir. More than, yeah. I jump to the last slide sir. I am jumping to the last slide okay. sir. Okay. So dear viewers, dear friends, this is all about the today topics. थोड़ा सा टाइम कम रह गया, तो आई होप कि जितना टॉपिक आपने पढ़ा आपके कॉन्सेप्ट्स टोटली क्लियर होंगे. इसके लिए जो है अगर आपके पास फिर कोई क्वेरीज है, यू नोट माय ईमेल एड्रेस, माय फोन नंबर्स, दे आर ऑन द स्क्रीन, डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. तो आप सबको सुनने के लिए सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद शिक्षार्थियों और धन्यवाद सर. आशा करते हैं कि आज का सेशन काफी रोचक रहा.